everyone, welcome to Study Funda. Let's start with today's discussion. Topic for today's discussion is hybrid warfare is a challenge to India's national security. I hope many of you have seen that video of internal security. It's already uploaded on Study Funda YouTube channel. One piece of advice: whenever there's a topic related to internal security or topic related to IR, please attempt that particular question, because internal security as a topic is highly scoring, and you as an aspirant of CAPA you should know the gits and gamuts of internal security. That's one thing that you should know about it. So one piece of advice. And so let's start with today's discussion. Hybrid warfare basically means use of non-military tool, like in apart from conventional method, it involves use of non-military tool. It could be use of cyberspace, it could be use of biological weapon, it could be use of subverting national identity through radicalization and brainwashing. So all these include hybrid warfare. Emerging technology like use of drone also can be come under this. So this topic, you can attempt this particular topic. And one more thing, I guess in 2019 or 2020 there was one question related to use of unconventional method is a challenge to India's national security. So those unconventional method is nothing but the hybrid warfare. Hybrid warfare involves those unconventional methods. So it's the change of the name only, otherwise whole essay has to be written on the same parameter. So let's start with discussion. Hybrid warfare is a challenge to India's national security. I have already told you that whenever you attempt any essay in particular, you don't have to start with your definition. The starting of essay, if you are starting your essay with a definition in introduction, it looks very childish, so please avoid that. And also do not start directly. Here also what I have done is I have not started directly. I have started that India's border are under strain and its internal fabric has been threatened by societal cleavages. So the notion of threat that nation faces are now changing. Earlier it was the only border problems, but now it just don't involve the border but also the whole society as well. So the notion of threat that we faces today are increasingly under change. This is something expected as the means of war are in transition. What I mean by here is that earlier means of war were military and conventional war. The war fought on the military lines, but now as we are seeing the hybrid warfare is in news. The means of war aren't changing. Like you haven't seen that conventional military going to war and all that, but you can see that there's a constant confrontation among countries. Like for example, India and China is highly using these hybrid warfare tools to disrupt India's national security fabric. So these are means of war and transition. So what I have done is I have linked this paragraph with the our notion of internal security and how it threatens it is being threatened by the unconventional methods such as hybrid warfare tools. In this context, the paradigm of internal security have now grown to include the threats from cyber attack, transnational warfare, biological and chemical warfare, and other events such as fake news or illegal migration, which are examples of hybrid warfare. So, have you seen we in the last essay, in the last line of our introduction, we have introduced the word of hybrid warfare, and that's how we are going to unleash our essay step by step. If the topic of essay is hybrid warfare, we are not going to completely throw open our essay directly with hybrid warfare. We are going to do this by step. Once we have introduced our word hybrid warfare, now we're going to introduce our main body. So we have directly started because 300 words में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, और इंटरनल सिक्योरिटी कैसे बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज बहुत होती है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि न्यूज़ में आता ही रहता है, तो हमने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है. ये आपके ऊपर है, आप अच्छे से फ्रेम करके सेंटेंस करना चाहो तो वो कर सकते हो, वरना जो डायरेक्ट मेथड होता है, जैसे आई ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द डायरेक्ट मेथड बिकॉज मेरे पास पॉइंट्स में फॉर्मेट मुझे टू द पॉइंट याद रहता है. तो व्हाट आई डू इज़ फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके आई लाइक टू अटेम्प्ट एनी ऐसे.
सी फॉर ऑल दोज हु आर अटेम्प्टिंग दिस ऐसे, आपको डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है, आप डायरेक्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज मैंने बहुत कॉपीज़ चेक करी है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छी करते हैं। तो अगर आपको फर्स्टली, सेकेंडली और ये से थर्डली करके नहीं करना है, आप डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। बट मेक श्योर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए 300 वर्ड्स के अंदर लिखने के लिए। ऐसा ना हो आप सेंटेंस फॉर्मेशन में लग गए, बिकॉज सेंटेंस टेक्स लाइन, अ लॉट ऑफ वर्ड्स इट टेक्स। तो ऐसा ना हो कि आप वो वर्ड्स को ऐड करते करते 300 वर्ड्स की जो लिमिट है वो ब्रीच कर गए। सो मेक श्योर ऑल ऑफ दीज थिंग शुड नॉट हैपन इन द एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। साइबर अटैक हमने बता दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आप रीज़न फर्स्ट पॉइंट लिखोगे या कोई अपना पॉइंट दोगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप या तो उससे रिलेटेड डाटा दो या कोई एग्जाम्पल दो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो भी उस टाइम पे आपको याद आ रहा है। बट ज़रूरी है देना, क्योंकि वही आपके पॉइंट को सब्सटैंशिएट करेगा। आप भारी भारी इंग्लिश के शब्द लिख दोगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे अटैम्प्ट करना है, इंग्लिश नहीं चेक करवानी है वहाँ पे, अपनी सिंपल लैंग्वेज में अटैम्प्ट करके अपना कंटेंट पुटअप करना है वहाँ पे। सो फर्स्ट इज साइबर अटैक। The cyber threat can alter outcomes in battlefield and can affect critical public infrastructure. हमने cyber threat बताया कि how cyber space can be misutilized for threatening the internal security architecture of a country. हमने बताया that it can alter outcome in the battlefield. How? Because it can affect critical public infrastructure. And also ये भी आपने सुना होगा कि जो बहुत सारे टूल्स जो काम करते हैं which they uses बहुत सारे मिलिट्री टूल्स को भी आप साइबर स्पेस को यूज़ करते हुए उन्हें हैम्पर कर सकते हो। कोई रैंसमवेयर, कोई बॉट डाल दिया तो इट वोंट वर्क। तो ये भी एक, अगर किसी के पास इससे रिलेटेड कोई डाटा है तो आप वो भी पुटअप कर सकते हो। कोई रिसेंट में इंसिडेंट हुआ है, आपको वो एग्जांपल में याद आ रहा है। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल पुटअप करा है, मैंने करा है रीसेंट अटैक ऑन कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। 2018 में कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट अटैक हुआ था, तो आई गेस वो सबको पता होगा। और ये भी नहीं तो सबने मुंबई पावर आउटरेज सुना था। मुंबई पावर आउटरेज इन 2021 आई गेस, लास्ट ईयर ही हुआ है अक्टूबर में। रीसेंट फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट, रीसेंट से मेरा मतलब है फाइंडिंग्स केम आउट इन जनवरी फरवरी आई गेस। सो दो सजेस्ट कि जो अटैक मुंबई पावर आउटरेज था इज़ नॉट, इट्स नॉट टेक्निकल फॉल्ट, इज़ बिकॉज ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ साइबर स्पेस बाय द चाइना। तो ये बेसिकली चाइना के थ्रू जो हुआ था, जो अटैक हुआ था। तो दैट्स हाउ वंस साइबर स्पेस कैन बी यूज्ड टू डिस्टर्ब योर नेशनल इकोनॉमी एज वेल। सेकेंडली हम पे कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे है 2018 में। इसकी भी फाइंडिंग जब आई थी तब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा था। फाइंडिंग्स में ये पता चला था कि कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे साइबर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से एक टेक्निकल फॉल्ट आया था। सो दैट टेक्निकल फॉल्ट इज़ नॉट नेचुरल बट इट वाज मेड बाय द बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ साइबर अटैक। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो, और बहुत बड़े पॉइंट नहीं लिखने हैं। हमने साइबर अटैक दिया है, हमने ये बताया है सिर्फ एक लाइन में कि साइबर अटैक कैसे मिस यूटिलाइज कर सकते हैं। इट कैन अल्टर आउटकम इन बैटल फील्ड एंड अफेक्ट क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने उसका एग्जाम्पल दे दिया है। हमारे पास मुंबई पावर आउटरेज का भी एग्जाम्पल था, तो आप दोनों मत लिखना, मतलब दोनों लिखोगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स स्ट्रेच हो जाएंगे। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। आप मुंबई पावर आउटरेज भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। आप कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लिख सकते हो। और अगर कोई और मेजर अटैक है जो आपने रिसेंट में सुना है तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे स्टक्सनेट, ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। बट मैंने ये इसलिए अवॉइड करा है लिखना बिकॉज एक तो ये बहुत पुराना है, दूसरा इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं है, तो आप अवॉइड करो। जो इंडिया के कंटेक्स्ट में है और जो रीसेंट में है उस एग्जाम्पल को दोगे तो वो ज़्यादा वेटी लगेगा आपका। और हमने फिर एक डाटा लिखा है दैट एज पर ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिपोर्ट इंडिया इज़ रैंक्ड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक। तो हमारे पास साइबर अटैक के रीज़न से रिलेटेड एक पॉइंट हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया, और एक हमने डाटा ऐड कर दिया दैट व्हाट इज द ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिपोर्ट सजेस्ट। हमने वो भी बता दिया कि इंडिया सेकंड नंबर पे है साइबर अटैक में। दैट्स हाउ हमने अपना फर्स्ट टॉपिक एंड करा है यहाँ पे। हम अपना दूसरा टॉपिक लेते हैं, सेकेंडली बायोलॉजिकल वॉरफेयर। यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट रह के मैंने अपने ऐसे को अटैम्प्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे 300 वर्ड्स में ख़त्म करना है। तो मैंने कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन पर अगर आप देखो बहुत ज़्यादा वेटी से सेंटेंस नहीं दे है कि बहुत ज़्यादा लैविश से सेंटेंस या इंग्लिश दे रही हूँ। डायरेक्टली अटेम्प्ट करा है फर्स्ट सेकेंडली।
Second is biological warfare, which can cripple a country's healthcare system and may impact and expose military and civilian susceptibility. See, whenever there is a biological attack or chemical attack ना, तो वो मिलिट्री की कैपेबिलिटी से बाहर हो जाता है कंट्रोल करना, बिकॉज पॉपुलेशन एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है उसका और इतने बड़े स्केल भी हो जाता है कि जब तक उसे कंट्रोल कर सके तब तक डैमेज ऑलरेडी बहुत जगह तक हो चुका होता है. सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसका हमने एग्जाम्पल दिया है यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन इन वर्ल्ड वॉर वन में जो बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ हुआ था हमने उससे दे दिया. अभी जैसे सीरिया के केस में यूज़ हुए थे केमिकल वेपन, आप चाहो तो आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो. और अभी ऑल्दो ऑफिशियल नहीं है बट अनऑफिशियल रिपोर्ट सजेस्ट दैट रशिया इज़ ऑल्सो यूजिंग केमिकल अटैक इन यूक्रेन. तो आप बट वो क्योंकि ऑफिशियल नहीं है सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट इज हाई थ्रेट रिजल्टिंग फ्रॉम ड्रोन अटैक. ड्रोन अटैक तो आप सबको पता है, इंडिया इज़ फेसिंग ट्रबल इन कंट्रोलिंग दीज ड्रोन अटैक. हमने ड्रोन अटैक का सबसे पहला पॉइंट ये बताना है कि वाई दीज ड्रोन अटैक आर हैपनिंग. अब तक कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है क्या इसको रोकने के लिए. तो हमने ये बता दिया दैट दीज ड्रोन फ्लाई लो एंड देयरफॉर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी रडार सिस्टम एंड थस हाई थ्रेट फॉर कंट्रीज इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. यहाँ पे भी आपके पास अगर कोई डाटा है तो आप डाल सकते हो, बट मैं फिर बार रिपीट कर रही हूँ दैट इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 3 to 4 वर्ड्स. बहुत ही शॉर्ट में अपना डाटा डालो, अपना आंसर ख़त्म करो. सो फोर्थ पॉइंट इज द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन विच पोजेस थ्रेट टू कंट्रीज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. Illegal migration actually poses threat to countries' demographic structure because the natives feel that they have been lost of the opportunity that are available to them. तो ये important point है. And secondly, as per MHA, these illegal migrants are actually the threat for India's internal security because they are involved in illegal activities. ये MHA की रिपोर्ट है, तो आप इसको कोट करके लिख सकते हो. पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है कि MHA की कौन सी रिपोर्ट है, किधर आई थी, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है. बस यू कैन डायरेक्टली राइट दैट दीज एज पर MHA रिपोर्ट दीज इलीगल माइग्रेंट्स सच एज रोहिंग्या आर इंडल्जिंग इन इलीगल एक्टिविटीज़ विच आर डेट्रीमेंटल टू नेशंस इंटरनल सिक्योरिटी. तो आप ऐसे अपने लाइन को सपोर्ट कर सकते हो, जो आपने सब्सटैंशिएट कर सकते हो अपने कंटेंट को. नेक्स्ट लास्टली इशू ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन. फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन तो मोस्ट प्रोमिनेंट है आज के टाइम पे. ये इशू इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है क्योंकि ये स्पेस भी ज़्यादा लेगा. विच हैज़ पोटेंशियल टू रेडिकलाइज एंड ब्रेन वॉश इंडिविजुअल. सी व्हेनेवर यू सी any news related to religious persecution or anything related to that, caste persecution, you actually get radicalized. There's a saying in world that it is very easy to radicalize on the name of religion. So वही हमने यूज़ करा दैट फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन. आपको उसका सोर्स नहीं पता है, ना ही बहुत ज़्यादा लोगों को पता है कि हम फैक्ट चेक इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं. सबको पता नहीं होगा अब तक. तो वो जो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है. तो ब्रेन वॉश और रेडिकलाइजेशन में सबसे बड़ा हाथ इसका होता है. अब हमें यहाँ पे एग्जांपल देना था क्योंकि कोई डाटा है तो डाटा दे सकते हो. मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है लोन वुल्फ अटैक. लोन वुल्फ अटैक इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेडिकलाइजेशन. लोन वुल्फ अटैक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली 2021 में शायद न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर, आई गेस न्यूजीलैंड में ही, या न्यूजीलैंड में अटैक हुआ था. सो लोन वुल्फ अटैक आप सबको पता होगा क्या होते हैं. लोन वुल्फ अटैक आर बेसिकली दोज विच इन्वॉल्व इंडिविजुअल कैरिंग आउट हार्मफुल और डेट्रीमेंटल एक्टिविटी. दे आर आउट ऑफ एनी कमांड स्ट्रक्चर. जो सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर के अंदर रह के नहीं बल्कि उसके बाहर रह के इंडिविजुअली काम करते हैं. जैसे और लोन वुल्फ अटैक को ट्रैक करना इज़ अ वेरी पेक्यूलर टास्क क्योंकि दोज लोन वुल्फ अटैकर गेट रेडिकलाइज, दे गेट ब्रेन वॉश थ्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड वी कैन नॉट कंट्रोल दोज इन्फॉर्मेशन. तो हमें पता नहीं होता कि जो वो अटैक कर है उसका मूव क्या होने वाला है, वो किस पर्पज़ से और किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है, किस कम्युनिटी के अगेंस्ट किया गया है. क्योंकि जब आप अपने आप अकेले जाके अटैक कैरी आउट करते हो तो उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है.
लोन वुल्फ अटैकर ज़रूरी नहीं है कि लोन वुल्फ अटैकर की हिस्ट्री रही हो ऐसी, बट बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड ब्रेन वॉशिंग they get involved into this, and since they work outside of any central command structure, तो ट्रैक करना becomes difficult. तो हमने इस तरीके से मेन बॉडी में हमने सारे पॉइंट्स देखे, इस तरीके से अपने ऐसे को कंप्लीट करा है. 5 पॉइंट देने के बाद भी हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट थे जो रह गए हैं, तो हमें सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करने हैं क्योंकि हमें सॉल्यूशन भी देने हैं, क्योंकि ऐसे में जब आप कंक्लूड करोगे तो आपको सॉल्यूशन बताने पड़ेंगे. तो हमने क्या लिखा है लास्ट में, होस्ट ऑफ अदर थ्रेट्स such as issue of smuggling of arms and drugs because of India's geographical location are the tip of iceberg which touches internal security architecture of country. See, golden crescent और golden triangle के बीच में इंडिया सैंडविच्ड है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू की कमेंट सेक्शन में बताइए गोल्डन क्रिसेंट कंट्री कौन सी है और गोल्डन ट्राइंगल कंट्री कौन सी है, नाम लिख के बताना. बिकॉज इंडिया इज सैंडविच बिटवीन गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट. सो जो स्मगलिंग है आर्म्स की और ड्रग्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो हमने पूरा एग्जाम्पल नहीं दिया है, हमने सिर्फ ये लिखा है इशू ऑफ स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग्स, और रीज़न बता दिया है कि क्या रीज़न है, बिकॉज ऑफ इंडिया जोग्राफिकल लोकेशन, और ये बता दिया कि ये सिर्फ टिप है एक आइसबर्ग्स की जो थ्रेटन करता है इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. पूरा मेन बॉडी एक्सप्लेन करने के बाद विल गोइंग टू कम टू अवर कंक्लूजन और solution part of our essay. To deal with this issue, India needs a national security strategy. See, the most important thing is that जो भी आप न्यूज़ सुनोगे या कहीं भी आप इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी आप आर्टिकल पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, एडिटोरियल में तो बहुत ही ज़्यादा आता है. तो आप उन एडिटोरियल को अगर पूरा भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो उसमें से जो सॉल्यूशन पार्ट है आप उसको लेके नोट्स बना लो. जैसे हर एडिटोरियल में आता है कि इंडिया नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग. हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बजाय लॉन्ग टर्म गोल सेट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करनी चाहिए ताकि हम प्लान कर पाए अपनी स्ट्रैटेजी. और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. इसके अलावा टू टैकल साइबर थ्रेट्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज़ द नीड ऑफ आवर. साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बेसिकली हमारे पास प्रॉपर जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है. तो जो मिसयूज़ हो जाता है पर्सनल स्पेस का और साइबर स्पेस का, उसको बैलेंस करना पड़ेगा. आप किसी को ट्रैक एंड ट्रेस तो नहीं कर सकते हो बिकॉज दैट गोइंग टू बी कम अंडर द राइट टू प्रिवेसी, लेकिन आपको अपने साइबर आर्किटेक्चर को इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा कि आप किसी की पर्सनल स्पेस को, आप प्राइवेसी इशू को भी इन्वेड ना करो और साथ में ट्रैक डाउन भी कर सको इलीगल एक्टिविटीज़ और दोज एक्टिविटीज़ विच आर डेट्रीमेंटल टू इंडिया नेशनल सिक्योरिटी. Thus, one more thing is that upgradation and training of armed forces, because means of war are in transition. They are shifting from conventional method to unconventional method. So the overall armed structure, whether it's related to military, it's related to paramilitary or police force for that matter also, they need to change and upgrade themselves. पता होना चाहिए कि किस तरीके से वॉर के कन्वेंशनल मेथड से दूर होते जा रहे हैं और अनकन्वेंशनल मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं. तो वो तरह की ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट्स में मिलनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू टैकल माइग्रेशन इशू. अच्छा, वन मोर थिंग, जो भी हमने पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पर ऊपर मेन बॉडी में रीजंस के, हाइब्रिड वॉरफेयर में हमने जो लिखे थे उन्हीं के पैरेलल में हम सॉल्यूशन में देंगे. लाइक एक तो हमने ओवरऑल गोल बता दिया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का जो ओवरऑल चाहिए हमें. सेकेंडली हमने बताया साइबर अटैक लिखा था तो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग ऑफ आर्म फोर्सेस, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू टैकल माइग्रेशन इशू, बिकॉज हमने माइग्रेशन का पॉइंट लिखा हुआ है तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ बताया माइग्रेशन इशू के लिए. एंड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द वल्नरेबल सेक्शन टू डी रेडिकलाइज देम, आर फ्यू स्टेप्स टू बी नीड टू बी टेकन. डी रेडिकलाइजेशन करने के लिए हमें, क्योंकि हमने रेडिकलाइजेशन का पॉइंट लिखा है, लोन वुल्फ अटैक को बताया है, इसलिए बताया कि डी रेडिकलाइज करने के लिए हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस करनी चाहिए. व्हेनेवर यू मेक अ पर्सन फील दैट ही और शी बिलोंग्स टू अस, फ्रॉम आवर कम्युनिटी, फ्रॉम आवर सोसाइटी, आवर कम्युनिटी, मतलब होल ऑफ द थिंग, नेशन कॉन्सेप्ट एज अ थिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली लेक्चर्स ऑफ देयर क्लासेस. जो नेशन, जो कॉन्सेप्ट होता है नेशन स्टेट का, वो इन्वॉल्व होना चाहिए आपके प्राइमरी लेवल पे या फॉर दैट मैटर सेकेंडरी लेवल पे, जो भी लेवल सही लगे
बट वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए ताकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो सके इंडिविजुअल्स में और वो डीरेडिकलाइज हो सके. इसके अलावा हमने अब पॉइंट्स और ऐसे लिखने के बाद मेक श्योर दैट यू डोंट एक्सीड योर नंबर ऑफ वर्ड्स. 300 वर्ड्स, आई गेस ये 300 वर्ड्स से ज़्यादा ही हो गया है, बट कुछ पॉइंट्स नेसेसरी थे इसलिए वो डाल दिए. लास्ट में हाइब्रिड वॉरफेयर विद इट्स वेरियस फॉर्म इज हेयर टू स्टे ड्यू टू इज ऑब्वियस बेनिफिट टू द एक्टर एम्प्लॉइंग इट, deniability and exploiting the legal gray zone, and thus multinational framework should be developed to facilitate cooperation and collaboration across border. See, जब हम कंक्लूड करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया कंक्लूजन में अगर आपके पास कोई न्यूट्रल और बैलेंस थिंग है तो आप लिखिए, वरना आप कंक्लूजन में भी आप अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत सारे हमारे पास है अवेलेबल, तो हमने एक इंटरनेशनल सॉल्यूशन दे दिया. ऑल दीज अबव सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू इंडियाज़ कंटेक्स्ट. ये वो सॉल्यूशन है जो हमें नेशनल लेवल पे लेनी चाहिए. और ऐसा क्या सॉल्यूशन जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे लेना चाहिए या ग्लोबल लेवल पे लेना चाहिए? वी नीड टू इंक्रीज मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क ताकि हम कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन अक्रॉस बॉर्डर को फैसिलिटेट कर सकें. एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू कंप्लीट योर एसे विद इन 300 वर्ड्स. जब भी कोई एसे आएगा इंटरनल सिक्योरिटी का, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डोंट स्किप दैट पर्टिकुलर एसे. मैंने जब कॉपी चेक करी थी तो अनकन्वेंशनल मेथड का टॉपिक दिया था पेपर 1 में, जब मेरे ख्याल से पेपर 1 टेस्ट सीरीज़ 1 में, तब मैक्सिमम बच्चों ने साइबर अटैक को एक्सप्लेन कर दिया था अपने मेन बॉडी में, और जो बाकी चीज़ें थी उनको एक लाइन में लिख के ख़त्म कर दिया था. वो आपको नहीं करना है. साइबर अटैक को भी उतनी स्पेस देनी है जितनी बाकियों को देनी है. सब ने साइबर अटैक को तो 6 लाइनें दे दी थी, और जो बाकी चीज़ है उन्हें लिख दिया था अदर प्रॉब्लम्स आर बायोलॉजिकल वॉरफेयर, फेक न्यूज़, इलीगल माइग्रेशन. नहीं, जब भी आप कोई पॉइंट लिख रहे हो उसे आप सपोर्ट करने से आर्ग्यूमेंट को मेरा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप डाटा लिख दो, एग्जांपल लिख दो, क्योंकि जो रिसेंट में होना चाहिए और जो ऑफिशियल होना चाहिए सिर्फ वही लिखिए. आप जो न्यूज़ में हो वही लिखिए, इसके अलावा आप लिखोगे तो फ़ायदा नहीं होगा. और एक और चीज़, जब आप एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे वुडन क्लब न्यूक्लियर पावर प्लांट का आपको लिखना है या मुंबई पावर आउटरेज का लिखना है, तो उसे एक लाइन में लिख के आप ख़त्म करो. उसके आगे और पीछे की स्टोरी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए. तो ये एक चीज़ थी. और दूसरा, आप टारगेट रखोगे आपको पेपर 2 में 90 अबव मार्क्स लेकर आने हैं. ऑन एन एवरेज 60-70 सबके आ जाते हैं, बट आपको अगर 90 अबव लेकर आने हैं तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कंटेंट देना पड़ेगा. और वो कंटेंट तभी बनेगा जब आप अपना सारा डाटा इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल के साथ पुट अप करोगे अपना ऐसे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट.